with our web development program. So I hope that till yesterday, what we discussed, still I'm going to give just a brief recap of that so that everybody can be alert enough to yes, till now what we have studied, right? So till now we have just gone through the basic syntaxes of HTML, and yesterday we started the first lab session. Okay, in the first lab session we discussed about the structure, how actually HTML codes will be written on an editor. Any editor, we can use Notepad as an editor. We can use Notepad++ as an editor. There are so many editors. Sublime is an editor. There are so many editors available, but I have discussed the simplest one because Notepad is very much aware, familiar with you all. Everybody is using it as a text editor to having their text document. So I am here using Notepad as well as Notepad++, the basic editor for writing the HTML code. Apart from that, yesterday I discussed how we are going to write the code, how we are going to save the code with the extension that is .html, right? And after that, how we are going to execute that particular code on a browser. And I have given you so many examples. So yesterday we covered the syntaxes like title tag we discussed. Okay, and after that we discussed about body tag. Okay, inside the body tag we discussed about few attributes of body tag, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी बैकग्राउंड में आप कलर कैसे चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर एज वेल एज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप उस वेब पेजेस के आपके ऊपर लिखा जाएगा उसका कलर को आप चेंज कर सकते हो, right? I discuss you that you can use the color name as well as the 6-digit hexadecimal color code which is available in Google. You will get all the color code there, right? And after that I discuss how to import an image. एक image को हम लोग as a background में कैसे लगाएंगे, right? So and the last that we discuss about headings, that there are 6 headings in HTML, H1 to H6. H1 is the largest one, then H2 is the second largest, and so on. H6 is the smallest one, right? So we till here we discussed and we have seen the lab session also. If any student have missed any class, so all the videos as well as the content is available on your WhatsApp group. Kindly spare few time and just go through it so that you will be very comfortable with the upcoming classes. Okay, so today I'm here to discuss few more tags. Okay, so today we will be covering this slide, right? So you can see that here I have written few tags name there, right? So we can start. The first tag is the paragraph tags, which is denoted by P. Okay, then we have BR, that is break tag. Okay, then third we have center tag. देन वी हैव फॉन्ट टैग. येस्टरडे बहुत डिस्कशन हो रहा था फॉन्ट पे कि साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने कहा था कि जस्ट वेट, slowly we will be covering the tags, then automatically most of your problems, most of your doubts will be answered yourself. Okay, the moment you are going to be regular in the class, so gradually I will be discussing the topics. I have a format for that. Okay, so just be patient, trust, have trust, give me time, let me explain the topic slowly. Whatever doubts you are having, gradually you will see कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप उन सारे डाउट्स को एक दूसरे को रिलेट करोगे, तो you will be getting the answer yourself rather than becoming panic or creating chaos. Okay, then we will be discussing B, that is bold. Don't get confused with BR and bold. It is BR and it is simply B, that is bold. Then I, that is stands for italic. It is U, stands for underline. And this is TT, typewriter style. हम लोग देखते हैं बहुत सारे, अभी भी आप देखोगे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जनरली दोज डॉक्यूमेंट्स का एक डिफरेंट फॉन्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टाइपराइटर स्टाइल फॉन्ट. ओके, so most probably today we are going to discuss these tags. If we will be covering these tags, then I'm having one more slides to discuss, that is about कंबाइनिंग टैग्स. अभी तक हम लोग एक एक सेपरेट टैग्स को यूज कर रहे थे, हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे. इफ पॉसिबल, अगर जरूरत पड़ा तो हम एक दो टैग को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं टू अचीव अ गुड इफेक्ट, to achieve a more attractive look, right?
So we will be discussing how we are going to combine the different tags of HTML. And if today the time will allow, then we will be covering this topic also, that is lists in HTML. So these two slides are the highlights of the day. Today we will be covering these two slides, and apart from that, all the codings are already I have pasted here, which will be right now I will be discussing all these codings. Apart from that, these codings will be shared to you in the group after the class gets over. Okay, so I hope I'm clear to you. So now let's start with the today's topic. Okay, so we will be starting this first slide. Just let me open my notepad. Okay, so most probably, my dear student, yesterday we discussed till P4, the program P4, which I have saved with the extension p4.html. तो हमने most probably P4 तक देखा था. एक बार मैं उसको P4 को एक बार फिर से ओपन कर देती हूँ. So this was the last topic that we discussed yesterday, that there are the 6 different types of headings in HTML. फिर मैंने उसके अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि इट कैन बी सेंटर, इट कैन बी राइट, इट कैन बी लेफ्ट. एंड मैंने ये भी बताया था कि इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं. जैसे अलाइन इज एन एट्रीब्यूट, बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस बॉडी टैग, एंड दीज आर द वैल्यूज. जैसे सेंटर, राइट, लेफ्ट, या फिर आप कलर का नाम देते हो ब्लैक, लाइन, तो ये सारे क्या है? दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. So till now we have a clear concept, we got an idea about what is a tag, what is an attribute, and what is the value. Value is always associated with the attribute. Every attributes will have a value. जैसे हम बोलते हैं ना मीटर, तो कितना मीटर चाहिए, लीटर, कितना लीटर आपको मिल्क चाहिए, तो it has certain quantity. In the similar way, every attributes of an HTML comes with a value. Okay, so till now we have discussed here, right? Now let's start with the next program, that is P5. So today onwards we are going to discuss from the program number P5. Okay, मैम रिपीट कंबाइनिंग टैग, डोंट वरी, वो तो बस मैंने डिस्कस किया है कि आज वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी मैंने कंबाइनिंग टैग्स को बताया नहीं है, मैंने उसका प्रैक्टिकल नहीं बताया, जस्ट मैंने बताया कि आज का ये कंटेंट है. दीज आर द बुलेट्स पॉइंट विच विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास. सो प्लीज हैव पेशेंस. I have not discussed a lot about combining tags. Okay, I have just given an idea कि if possible we can combine 2 or 3 tags together. सपोज बॉडी के अंदर हेडिंग का यूज करना पड़े, हेडिंग के अंदर फॉन्ट का यूज करना पड़े, तो आपस में हम लोग टैग्स को कंबाइन भी कर सकते हैं. So my dear student, yesterday we discussed that how we are going to add an image. आप एक बार देखो, मैं आपको एक प्रोसेस इमेज ऐड करने का मैंने बताया था कि आप जहां पे अपने HTML के कोड्स को सेव कर रहे हो, वहीं पे आप इमेज को डाउनलोड करके उसको वहां सेव कर दो, और सिंपली आप उस इमेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ancollege1.jpg. दिस इज वन वे, ये सबसे सिंपलेस्ट वे था to just add an image as a background. I'm showing you one more way because yesterday in the group there was some discussion on that. So I thought ki rather than answering there in the group, I should be discussing that question in the just beginning of the class. So I'm giving you one more way that how you are going to add an image as a background if that image is not available in the folder itself, right? जैसे कि कल तक मैंने क्या बताया कि सबसे सिंपलेस्ट वे कल मैंने आपको बताया कि आपका जहां पे HTML के सारे फोल्डर्स रखे हुए हैं वहीं पे आप एक इमेज को डाल दो, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एड इट. और सिंपली हम लोग बैकग्राउंड इक्वल्स टू उस इमेज का नाम अलोंग विथ एक्सटेंशन, इमेज का नाम अलोंग विथ हम लोग एक्सटेंशन डाल देते थे, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट आ जा रहा था, राइट? अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो हम इमेज है, इमेज हमारा कहीं और है, हमारे कंप्यूटर के किसी और लोकेशन पे, किसी और ड्राइव में हमारा इमेज क्या है, स्टोर है. अब हमको वहां से यहाँ पे इमेज को एज एन बैकग्राउंड में लाना है. उस केस में क्या होता है, आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा अपने इमेज का कि आपका इमेज एक्चुअली में कहाँ पे स्टोर है. जस्ट आई एम शोइंग यू द कंप्लीट प्रोग्राम. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है बैकग्राउंड इक्वल्स टू, डबल कोट्स पे मैंने लिखा है ई स्टैंड्स फॉर ई ड्राइव. इसका मतलब अभी जो इमेज को मैं इसमें लोड करने जा रही हूँ एज अ बैकग्राउंड,
वो इमेज हमारा सेम फोल्डर में नहीं है जिस फोल्डर में हमारा वेब पेज स्टोर है। हमारा इमेज कहीं और है, हमारे कंप्यूटर के किसी और ड्राइव में, किसी और फोल्डर में, किसी अनदर लोकेशन पे हमारा इमेज है। तो मैं उस इमेज को अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में लाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लाऊंगी? इन दैट पर्टिकुलर केस you have to specify the complete relative address of that particular image, कि वो इमेज आपका कहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैकग्राउंड इज इक्वल टू, डबल कोट्स में मैंने लिखा है ई कोलन, तो ई स्टैंड्स फॉर ई ड्राइव। ई को हम बताते हैं कि हमारे सिस्टम में ई नाम का एक ड्राइव है, उसके अंदर हमारा एक फोल्डर है जावा फोल्डर, उसका नाम है जावा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जो हमारा इमेज है वो क्या है, h1.jpg। वो क्या है, h1.jpg। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट पाथ हो गया मेरे उस इमेज का, जिस इमेज को मैं अब अपलोड करना चाहती हूँ। अभी तक हम लोग सिर्फ कल तक यहाँ लिख रहे थे h1.jpg, हम लोग बस लिख रहे थे, क्योंकि हमारा जो इमेज था वो सेम लोकेशन पे था जिस लोकेशन पे मेरे वेब पेजेस जिस फोल्डर में स्टोर है। यहाँ पे जो मेरा h1 नाम का इमेज है वो उस फोल्डर में नहीं है, दैट इज एट सम अनदर लोकेशन। तो अगर आपका इमेज किसी अनदर लोकेशन पे, जैसे कल बहुत सारे स्टूडेंट का इमेज अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि उनका इमेज कहीं और था और उनका वेब पेज कहीं और था, तो उस केस में आपको कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट यूआरएल आपको अपने इमेज का देना पड़ेगा कि आपका इमेज एक्चुअली में आपके हार्डवेयर पे या आपका जो भी मैकेनिज्म है, जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस के किस लोकेशन पे आपका एक्चुअली में इमेज स्टोर है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई कोलन जावा फोल्डर एंड दिस इज द नेम ऑफ माई इमेज। उसके बाद मैंने इस बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, राइट। इसको हमने यहाँ सेव कर दिया। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, दैट इज P5। अभी मैं P5 आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ, राइट। P5, सो दिस इज P5। उसको एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया, and you will see कि जो आपका इमेज था, जो मैंने एज अ बैकग्राउंड में लिया था, that image will be uploaded, that image will be uploaded. There is some little bit of network issue perhaps, that's why it is taking time. Okay, just it will be done. Let me see the chat box. What is the E stands for? E stands for drive. रजनीश जी, आपका क्वेश्चन था what is E stands for? तो E हमारे सिस्टम का एक ड्राइव है। जैसे होता है ना C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे सिस्टम में E नाम का ड्राइव है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में भी E नाम का ड्राइव होगा। हो सकता है आपके सिस्टम में F नाम का ड्राइव होगा, आपके सिस्टम में किसी और ड्राइव का नाम होगा। जैसे हमारे सिस्टम में अलग अलग पार्टीशन होता है ना लैपटॉप में, C ड्राइव, D ड्राइव। तो मेरा जो इमेज था, ये जैसे इमेज मैंने लिया था, ये इमेज एज अ बैकग्राउंड में मैंने लिया है, तो ये इमेज हमारा कहाँ पे स्टोर था, मेरे सिस्टम के E ड्राइव में। जैसे आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम अपने दिस पीसी में गए, तो दिस पीसी में आप देखेंगे कि मेरे पास ड्राइव है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। तो जो मेरा इमेज था, देखिए ये मेरा C ड्राइव है, दिस इज माय E ड्राइव एंड दिस इज F ड्राइव। तो जो मेरा इमेज है वो E ड्राइव के अंदर हमने लोकेशन क्या डाला है, जावा फोल्डर। मतलब E के अंदर देखिए मेरा एक फोल्डर है जावा फोल्डर नाम का, और इसके अंदर आप देखोगे एक इमेज है H1, क्योंकि जो मैंने इमेज का लोकेशन दिया दैट इज H1। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि H1 नाम का एक इमेज है, यहाँ पे दिख रहा है ना, H1 नाम का एक इमेज है। तो ये पूरा लोकेशन मैंने वहां पे डाला है। कल मैंने बताया था कि आप चाहें तो अपने इमेज को सेम फोल्डर में रख सकते हैं, और अगर आप चाहें, अगर आपका इमेज किसी अनदर लोकेशन पे है तो भी आप उसको एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो। बट उस केस में रैदर देन प्रोवाइडिंग ओनली द इमेज नेम, आपको उस इमेज का फुल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। Ma'am, how we are able to know the exact address of a particular image which we want to upload? Very good question is raised by Arjun Mishra. So it's very easy if you want to know
एक्चुअली द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर इमेज। तो जैसे देखिए ये हमारा H1 है ना, तो यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ना, तो देखिए ये पूरा कॉपी हो गया, E:/Java फोल्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लेंगे, वहां जाके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक /h1.jpg। आई होप आई एम क्लियर। आप बस उसको क्लिक करोगे, जैसे ही आप जाओगे H1 के पास, यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाते रहता है कि ये कहाँ गया। यहाँ से जाके आप उसके कंप्लीट एड्रेस को, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये एड्रेस का फॉर्म ले लिया, E:, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ मेरा नोटपैड, इस नोटपैड पे गए, मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरा कंप्लीट आ गया, और बस इसके आगे स्लैश डाल के इमेज का जो मेरा नाम था H1.jpg मैंने डाल दिया। I hope Arjun Mishra ji, this part is clear to you. Okay, okay. करते हैं, वो कट करने के बाद कहीं सेव होता है क्या मैम? नोटपैड में जो हम लोग टाइप करते हैं कट करने के बाद, वो आपके क्लिपबोर्ड में रहता है। कोई भी चीज को अगर आप यहाँ से, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो कुछ देर के लिए वो कहाँ स्टोर रहेगा? मेरे क्लिपबोर्ड में। अगर हम इसको क्लोज कर दिए तो वो क्लिपबोर्ड से टेम्पररी होता है, वो वहां से गायब हो जाता है, राइट। तो वो फॉर द टाइम बिंग बस थोड़ी देर के लिए क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि आप सिस्टम बंद कर देंगे तो भी वो कहीं ना कहीं पेस्ट होगा, नहीं। एक बार आप कट कर दिए तो फॉर द टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए वो आपके क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड नाम का एक फाइल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, बस वो वहां पे स्टोर होता है, राइट। एंड उसके बाद वो जैसे ही आप उसको पेस्ट करोगे, इट्स ओके, अदरवाइज आप सिस्टम को बंद कर दोगे तो दैट विल बी फिनिश्ड ऑफ, दैट विल बी वैनिश्ड। ओके, so this was the another way through which you can add your image, background image in your web page, right? So now let's move to the next program, P6. Okay, so let me explain what I have written in the P6. So in this P6, actually I'm going to discuss you about the concept of paragraph tag and BR tag. पैराग्राफ टैग एंड BR टैग, दो टाइप्स का टैग आपके पास होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जो भी कंटेंट हम वेब पेज पे लिखे वो पूरा एक ही लाइन का बड़ा सा पैराग्राफ होगा। हो सकता है 2 लाइन के बाद मुझे कुछ स्पेस डालना पड़े, या हो सकता है कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना पड़े, उसके बाद 2-3 लाइन का गैप चाहिए, राइट। तो आप सोचोगे कि हम बॉडी में आके यहाँ पे गैप दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या, HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे मैंने 2-3 लाइन का गैप दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 3 लाइन लिखा है, HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। फिर मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया, मैंने HTML को क्लोज कर दिया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में लग रहा होगा कि हमारे वेब पेज में ऊपर के 2 लाइन में दिखेगा HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद 2-3 लाइन का गैप आएगा, और फिर नीचे हमारा ये मैसेज दिखेगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे जो भी इंटर मारो, स्पेस मारो, इसका कोई इफेक्ट आपके वेब पेज पे नहीं होता है, बिकॉज ये एडिटर है। बस यहाँ पे आपको वो चीज दिख रहा है, वेब पेज पे इसका कोई असर नहीं होगा। वेब पेज पे ये डायरेक्टली एक बड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ये जो हमारा P6 है, 1 मिनट, इस P6 को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे कि आपको वो बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है। ये बस एक ही साथ सब दिख रहा है ना, ये आपका कंप्लीटली एक साथ दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो लेकिन आपको तो लग रहा है कि नहीं, मैंने जो एडिटर में लिखा है, एडिटर में तो मैंने स्पेस डाला है, तो नो मैटर एडिटर में आपने कितना भी स्पेस डाला, दैट स्पेस हैज नथिंग टू डू विद द वेब पेज। वो सिर्फ आपको एज ए एडिटर पे आपको स्पेस दिख रहा है। इन रियलिटी वो वेब पेज पे आपका वो स्पेस या वो लाइन जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, इट हैज नो इफेक्ट। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि सपोज मुझे स्पेस डालना है, मुझे 2-3 लाइन का गैप चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी? तो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव the tag that is called P tag. P stands for paragraph tag and BR stands for break tag. BR stands for break tag, right? See, paragraph tag के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, to end a line, एक लाइन को एंड करने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, उस लाइन को एंड करना है, एंड ऑल्सो शो अ ब्लैंक लाइन, और उस लाइन को एंड करने के बाद मुझे एक और ब्लैंक लाइन छोड़ना है, line before beginning anything else, then use paragraph tag, right? इसका मतलब paragraph tag क्या करेगा,
जो जिस लाइन में कंटेंट है उस लाइन के बाद जंप करेगा और एक लाइन को छोड़ेगा, उसके बाद सेकेंड लाइन से हमारा नया टेक्स्ट को शुरू करेगा। BR टैग क्या करता है, टू सिंपली एंड वन लाइन, सिंपली एक लाइन से जंप करके दूसरे लाइन में आ गया। इसका मतलब पैराग्राफ में एक लाइन का गैप भी आपको दिखेगा, लेकिन ब्रेक टैग में सिर्फ लाइन स्विच ओवर होगा, फर्स्ट लाइन से हमारा डेटा कहाँ आ जाएगा, सेकेंड लाइन में। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई विल शो यू द प्रोग्राम। तो इससे आपको ये पता चल गया P6 में कि यहाँ पे हम कितना भी स्पेसेस डालेंगे, इट हैज नथिंग टू डू विद द वेब पेज ऑप्शन, राइट। So now let's move to the next program, that is P7, that is a solution of this particular problem. If I want space, if I want lines gap to be displayed on my web page, तो हम कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सेम कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा टैग लगा दिया, P टैग। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, रिमेंबर कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के टैग होते हैं। एक टैग होता है जिसको ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना होता है, उसको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग और वॉइड टैग। आप उसको एम्प्टी टैग बोलो और वॉइड टैग भी आप बोल सकते हो। उसको सिर्फ हमें ओपन करना होता है, उसे सिर्फ हमें ओपन करना होता है, नो नीड टू क्लोज इट, राइट। उसे हमें क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आपका जो ये P टैग है ना, पैराग्राफ टैग, या फिर जो आपका ये BR टैग है, ब्रेक टैग, दीज आर एम्प्टी टैग, ओके। सो बस इसको ओपन कर दो आप, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे मैंने P डाल दिया, इसका मतलब कि हमारा एक लाइन का गैप भी आएगा और हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग और BR, इसका मतलब इस दो लाइन के बीच में बस कोई लाइन गैप नहीं आएगा, बस हमारा आउटपुट इस लाइन से इस लाइन में आ जाएगा, एक लाइन बस जंप करेगा। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड ब्रेक टैग। पैराग्राफ टैग will give your output to the next line along with one extra blank line, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन के साथ वो रिजल्ट शो करेगा, whereas break tag will simply continue from the next line. Let me show you the output of this particular program, then it will be more clear to you. P7, okay. So I hope this part is clear. P7, see पैराग्राफ यहाँ लगाया था ना मैंने, है ना, तो देखो यहाँ पे एक लाइन का गैप भी आया, लेकिन HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ और इसके बीच में मैंने सिर्फ एक BR डाला था। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, अब जैसे देखो ये वाले के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे और डालते हैं BR, एक BR डाला, एक BR डाला, एक और BR डाल देते हैं। इसका मतलब कि ये जस्ट लाइक अ पैराग्राफ टैग हो गया, एक BR से तो लाइन जंप करेगी और एक BR से सेपरेट एक लाइन आ जाएगा, ओके, उसके बाद भी वो एक लाइन जंप कर रहा है, राइट। इसको सेव करते हैं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन, ओके, इट इज ऑलरेडी देयर ना, बस उसको रिफ्रेश कर देते हैं, है ना। आपको डिफरेंस दिख रहा है participants? Just yes ma'am, clear, I'm getting in the chat box, it's clear. If anyone can unmute yourself or raise the hand so that we will be able to unmute, because एक feel आ जाएगा कि हाँ yes you are getting, yes Shivam, you have raised your hand, so is it clear, the difference yes, is clear to you? Okay, okay, fantastic. So because this type of questions may be in your exam, my dear student, don't forget that you're not supposed to appear in your exam, you have to appear for your exam also. So every day whatever I'm discussing, it may be a part of your questions, because these are few fundamental things which can be there in the exam, okay. So you have to be very much particular about these small things, don't ignore it, that's why I called you, because बोलने के वक्त बहुत चीज बोल जाता है, it's not possible that everything should be available in the PDF format, okay. So sometimes it is necessary that we should note it down some points, okay. So this is the major difference between paragraph tag and BR tag, okay. So fine, so I hope that we are very much clear with these 2 points, okay. So now let's move to the next tag which I have planned. Let me see after this which tag I was supposed to discuss, okay fine. Now the next tag is center tag, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग, सेंटर टैग। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल अगर आप देखोगे तो कल जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे
उसमें क्या था कि हमारे पास जो वेब पेज थे, ठीक है, उसमें हम लोग अलाइन में लिख रहे थे, लेफ्ट राइट सेंटर, राइट। हम लोग लिख रहे थे बॉडी के अंदर, हम लोग हेडिंग में लिख रहे थे h1 इक्वल्स टू अलाइन, अलाइन की वैल्यूज लिख रहे थे सेंटर या लेफ्ट या राइट, हम लोग ये लिख रहे थे। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक सेपरेट सा टैग ही हो गया है सेंटर टैग, वो बिल्कुल सेपरेट टैग है सेंटर टैग। अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको मिड ऑफ द वेब पेज में डालना है, अगर वेब पेज के मिड में अगर आपको किसी टेक्स्ट को डालना है, राइट, तो rather than going with the heading tag, then using the alignment attribute, then assigning values of that alignment attribute, you can simply go with the concept of center tag also. So let me show you, that is P8. Let me show you next program, that is P8. Okay, before that center tag, this paragraph tag also comes with the alignment property. पैराग्राफ टैग के अंदर भी आपका अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर भी जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं, हम चाहें तो उस कंटेंट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, और इट कैन बी सेंटर अलाइन ऑल्सो, राइट। सो लेट मी सो सी, आई हैव रिटन हियर, बॉडी में मैंने ये लिखा, पैराग्राफ टैग ओपन किया, अलाइन इक्वल्स टू क्या लिख दिया, लेफ्ट। अब आप मत पूछो कि व्हाट इज दिस अलाइन, तो आप इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि वो टैग के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज एन एट्रीब्यूट, वो हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कोई कंटेंट हमारे वेब पेज के एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में दिखे, या एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में दिखे, या एक्सट्रीम मिड में दिखे, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, समबडी इज आस्किंग कि व्हाई टू यूज अलाइन, तो ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे कि अगर हम चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को के अपीयरेंस को लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द पेज, वेब पेज पर डिस्प्ले करें, then it is not being displayed automatically, खुद से वो डिस्प्ले नहीं होगा। For that we are supposed to use the attribute that is called alignment attribute. This attribute we have already discussed in the heading tag also. Heading tag also comes with this alignment attribute. In the similar fashion, this paragraph tag also comes with the alignment attribute. So let me execute this P8. It's there. अब देखो, ये राइट चला गया, ये लेफ्ट था और ये सेंटर पे था। नेहा कुमारी मैम प्लीज एक्सप्लेन अलाइन। अलाइन हो गया एक तरह से आपके टेक्स्ट का सजावट, कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से सजाना चाहते हो। अगर कुछ नहीं लिखोगे ना तो सिंपली वो लेफ्ट से शुरू होता है, एक्सट्रीम कॉर्नर से आपका शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में दिखे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बीच में वो नहीं आ जाएगा। आप वहां पे कितना भी बीच करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने बताया, आप कितना भी ब्लैंक स्पेस डालने की कोशिश करोगे तो खुद से वो ब्लैंक स्पेस नहीं लेगा। उसके लिए आपको पैराग्राफ टैग या बीआर टैग, ब्रेक टैग का यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे जब आप टेक्स्ट को यहाँ पे डालते हैं तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा राइट में दिखे, वेब पेज के लेफ्ट में दिखे, उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट। we have the attribute that is called align, ALIGN, इसी को हम लोग पूरा पढ़ते हैं अलाइनमेंट, राइट। बट इसको शॉर्ट में हम लोग जो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं दैट इज अलाइन, ALIGN। सो हाउ यू वांट टू अलाइन योर टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करना चाहते हो, राइट। तो अगर लेफ्ट डालोगे तो वो लेफ्ट में जाएगा, राइट डालोगे तो राइट। आप जैसे आउटपुट से देख सकते हो कि जो HTML इंटरेस्टिंग 3 जगह पे अपीयर हुआ है, राइट। नेहा आप इसको फोकस करो, देखो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस पे अपीयर है, लेफ्ट में है, राइट में है और सेंटर में। सो दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ अलाइन मीन, right? I hope it's clear to you, Neha. Neha, it's clear? Okay, ma'am. Thank you. Okay, good. So we discussed with this. Now I was supposed to discuss the center tag, right? That must be P9. Let me show you what is it there in that P9. It will be most probably the concept of center tag. Okay. जैसे यहाँ से भी तो आप सेंटर कर सकते हो ना, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर आप लिख सकते हो, राइट। तो उसमें उतना आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहो, इफ यू विश, there is automatically there is a tag that is called center tag। एक खुद ब खुद एक सेपरेट एक टैग हो गया सेंटर टैग।
जो कि अपने आप में एक टैग है। अगर आप किसी टेक्स्ट को ये सेंटर टैग के अंदर आप लिख देते हो, इफ यू आर राइटिंग एनी टेक्स्ट इनसाइड दिस सेंटर टैग, ओके, देन ऑटोमेटिकली it will make your text in the mid of the web page. वो आपके web page के mid में आपके text को ला देगा. So here you are not supposed to use any alignment, कोई extra attribute आपको value लिखने की जरूरत नहीं. It is just a shortcut. अगर all of a sudden हमें किसी चीज को mid में करना है, तो rather than going with that long process, you can simply use the concept of center tag also. Center tag is a container tag. It means इसे ओपन भी करना है आपको, एंड it has to be closed, mandatory, otherwise it won't work. Center tag HTML is very interesting. अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि HTML is very interesting will appear in the mid of the web page. So there are various options. बहुत सारे तरीका मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ. It depends upon a programmer, it depends upon a developer. आप किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करके वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि सेंटर टैग ही यूज करो, अलाइन प्रॉपर्टी नहीं यूज करो. इट्स टोटली अप टू यू, राइट? सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस P9 so that it will be you will be clear with the concept. Okay, so let me execute this P9. So you can see now it is there now. HTML is very interesting, right? I hope things are getting more clear to you, crystal clear to you, because the moment time is being passed, we will be moving to some complex type of tags, right? So आपका starting का सारा चीज fundamental बहुत clear होना चाहिए. इसलिए मैं थोड़ा सा slow भी हूँ, because जैसे ही एक flow में हम लोग आ जाएंगे, अब most probably it is third day, so most probably maybe tomorrow onwards थोड़ा सा हमारा speed level और थोड़ा हमारा concept को deliver करने का level थोड़ा सा upgrade हो जाएगा, because जो बेसिक लेवल है, कैसे लिखना है, कहाँ टैग को लिखना है, कैसे वर्क कराना है, जो सिंटेक्स, जो सिंपल टैग है, वो बहुत इजीली हमारा कवर हो जाएगा, सो दैट वी कैन मूव विद द ग्राफिक्स पार्ट. बटन्स कैसे डिजाइन करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे. आप बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो, उसमें देखते हो इंटर योर नेम, तो वो सारे बने होते हैं, वो सारी चीज कैसे बनेंगे. तो वी विल बी गिविंग मोर टाइम, मच टाइम टू दोज टॉपिक्स. So my dear students, again and again I am requesting you, so these things which we are covering in these recent days, 2-3 days, it is just you can say the ABC of HTML. So you have to be very much clear with these concepts, because these are the fundamental part. Again and again I won't tell you कि हाँ देखो यहाँ पे इसलिए ओपन किया टैग, इसलिए बंद किया. अभी मैं तो बोल भी दे रही हूँ कि सेंटर टैग आपका कैसा टैग है, कंटेनर टैग. अब आपको ये खुद समझ में आ जाना चाहिए, ओके ओके मैंने इसको क्लोज किया है, इट मींस इट इज मैंडेटरी. जिसको मैं नहीं क्लोज कर रही हूँ, इट इज अंडरस्टूड कि इट इज अ एम्प्टी टैग, इट इज अ void tag, right? So few points you have to be a little bit smart. I know you all are there, right? Ma'am, if today's class is over, can you repeat yesterday's class? Oh my god, it's already there, Pooja. Why you are so panicked? रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है ग्रुप में, उसको वीडियो उसको खोलो. सेम चीज है जो अभी जितना देर अभी बोला है, जितनी चीजें जो स्क्रीन शेयर किया है, जो प्रोग्राम दिखाया है, सेम चीज वहां पे दे रखा है, राइट? एक बार आप उसको पहले पढ़ो तो सही, गो थ्रू दैट. स्टिल इफ यू विल बी अनेबल टू क्लैरिफाई, वी आर देयर, राइट? ऐसे अब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ना कि पूरा बैक की चीजों को बताना. तो एक बार वीडियो, यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज, राइट? So we are very thankful to the management of the AN College and IQAC that everything is being provided, so that if a student misses the class because of any technical issue, it's okay, because ये और किसी भी चीज को रिटेन करना होता है. ये नहीं कि आपने मैम बोल रहे हैं आप उसी टाइम सुन रहे हैं. जो रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ शेयर किए हुए हैं उनको आप देखिए, उसको रिटेन कीजिए, फिर आगे बढ़िए. So center tag we have covered. So now let's start with the next concept, that is P10. Okay, see एकदम सिंक्रोनाइज वे में मैं चीजों को डाल दी हूँ आपके वो PDF में भी, so that अगर आप बस उसको डेट वाइज फोकस करोगे तो भी आप चीजों को बहुत क्लियर कर सकते हो. Okay, now see, now we are going to discuss about font tag. Yesterday बहुत डिस्कशन हुआ था, मैम साइज कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा. हम बोले थे जस्ट वेट, right? So now we are here with the font tag.
I know that you all have already worked on MS Word. MS Word देखो ना, यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट, अगर आप MS Word पे जाते हो तो ये फॉन्ट ऑप्शन दिख रहा है, आप देखो मेरे स्क्रीन पे, ये फॉन्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज लेते हैं, ये फॉन्ट साइज है आपका, ये फॉन्ट स्टाइल है कि कैसा होना चाहिए फॉन्ट का फेस। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, एरियल है, अल्जे, बहुत सारे होते हैं, कैलिब्री लाइट है, अलग अलग डिजाइन का। जिस डिजाइन को आप सेलेक्ट करोगे आपका टेक्स्ट का जो फेस है उसी तरीके से हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, राइट। तो आपके यहाँ पे फॉन्ट टैग को हम लोग डिस्कस करें, इट इज वेरी मच सिमिलर विद द फॉन्ट विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग इन MS Word, PowerPoint, इट इज वेरी मच सिमिलर। थिंग इज दैट कि वो आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप फॉन्ट टैग का यूज करोगे उसका इफेक्ट आपके वेब पेज पे दिखेगा। वर्ड के फॉन्ट का यूज करते हो तो वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे उसका इफेक्ट दिखता है। इन द सिमिलर फैशन जब आप फॉन्ट टैग का यूज करोगे तो उसका जो भी इफेक्ट होगा दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड on the web page where you are using this particular tag. Okay, so now let's move with the कौन से ग्रुप में PDF है? Oh my God, आप रजिस्टर्ड नहीं है क्या? Who is this asking? जो भी है, तुमने अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में होगे। जहाँ से लिंक मिल रहा है it's there, जैसे ठीक है, ये सब क्वेश्चन मत डालो, इस हमसे बात करना बाद में। चलिए बढ़ो आगे सुन। Now let's start with the font tag. Okay, देखिए जैसे हम font tag से, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो font tag हम यूज करेंगे वो किस पे इफेक्ट डालेगा, हमारे टेक्स्ट पे। वो किस पे इफेक्ट डालेगा? टेक्स्ट पे, बिकॉज फॉन्ट जनरली पिक्चर पे तो इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉन्ट किससे रिलेट होता है? दैट इज टोटली रिलेटेड विद द टेक्स्ट पार्ट, राइट। सो फॉन्ट टैग जब हम यूज करेंगे तो वो उसका जो टोटली इफेक्ट होगा वो किस पे आएगा? दैट विल बी डायरेक्टली गिविंग इफेक्ट टू आवर टेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फॉन्ट को ओपन किया, FONT, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो। HTML इस केस इनसेंसिटिव है, इसको कोई मतलब नहीं है केसेस से, आप अपर लिखो लोअर लिखो, इट्स ओके, बट द टैग शुड बी रिटन प्रॉपर्ली विद द स्पेलिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर दिया, फाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग लिखा, ठीक है, FONT। अब देखो, नाउ हु इज गोइंग टू आंसर मी व्हाट इज दिस साइज? साइज को क्या बोलेंगे टेक्निकली? जस्ट आंसर मी, साइज क्या है? साइज को मैं क्या बोलूं? साइज इज द डैश ऑफ फॉन्ट। साइज इज द डैश ऑफ फॉन्ट टैग। साइज क्या है फॉन्ट टैग का? यस रजनीश, यू वांट टू आंसर? अनम्यूट करो खुद को। मैम एट्रीब्यूट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एंड व्हाट इज दिस 10? 10 को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस 10? वैल्यू। Exactly. What is this color? It is again the attribute. What is this color? It is again attribute. What is this value? blue? What is this blue? Value of which attribute? Color. 10 is the value of which attribute? Size. So we can say that font का जो attribute है क्या है? Size है, color है, yes, right? So very good students, very good. Feel होता है, देखो ऐसे अगर आप करोगे ना चीजों को तो I know that you have more potential, you are more capable than me and you can be a very good developer. In the beginning I told you I'm not good at design part. That's one weakness which I'm having. So but I wish कि आप बहुत अच्छे design part, so that in near future if I get a chance I may take help from you all, right? Okay, see. So यहाँ पे हम साइज को डिस्कस किया, तो फॉन्ट हमारा यहाँ पे टैग हो गया, फाइन। मैंने लिखा साइज इक्वल्स टू 10, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पे, वैल्यू 10, 20, 30, जैसा साइज आपको देखना है, ठीक है। अगर मान लो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है क्या साइज होगा तो डाल के चेक कर लेंगे कि 10 डालने से अच्छा ऐसा दिख रहा है, नहीं कि थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ओके 12 डाल देंगे, अच्छा नहीं थोड़ा सा और बड़ा करके अच्छा 15 डाल देंगे, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। उसके बाद देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया, प्लीज पे अटेंशन। ये जो देखो, ये जो मैंने टैग को क्लोज कर, इसका मतलब यहाँ पे फॉन्ट टैग हमारा खत्म। और ये फॉन्ट किस पे असर डाल रहा है? बस HTML नाम के वर्ड पे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे फिर मैंने फॉन्ट को बंद कर दिया। इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉन्ट। दिस इज द पॉइंट व्हिच हैज टू बी वेरी मच क्लियर, बिकॉज जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी आपके साइड से क्वेश्चन आने लगेगा, मैम सिर्फ HTML का साइज बड़ा हुआ, इज वेरी इंटरेस्टिंग का साइज नहीं बड़ा हुआ। So to here only I am giving you a stress on this concept. Please pay attention. आप देखो फॉन्ट को ओपन किया, साइज डाला, कलर डाला, इसको यहाँ बंद किया,
फॉन्ट के पार्ट को बंद किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कंटेंट। तो ये कंटेंट क्या हो गया, HTML। आप याद करो मैंने फर्स्ट डे पीपीटी शेयर किया था, सेकेंड डे जो पीपीटी शेयर किया था उसे मैंने बताया था इधर ओपनिंग टैग होगा, इधर क्लोजिंग टैग होगा और बीच में क्या जाता है आपका कंटेंट। तो आप यहाँ पे देखो कि कंटेंट में सिर्फ मैंने किसको लिया है, HTML को, और इमीडिएटली मैंने फॉन्ट टैग को बंद कर दिया। इसका मतलब फॉन्ट टैग भी हमारा कंटेनर टैग है, इट हैज टू बी क्लोज्ड, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव रिटन अ सिंपल सेंटेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जो हमारा इफेक्ट आना चाहिए दैट विल बी ओनली अप टू दिस HTML। सिर्फ हमारा इसका इफेक्ट किस पे आएगा, HTML पे आएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस इज P10 ना, ओके जस्ट वेट, let me execute this P10 just wait, ये रहा आपका P10। आप देखो, आप यहाँ के आउटपुट से देख सकते हो कि जो आपका रिजल्ट आया है वो किस पे आया है। आप देखो तो दैट हैज द ओनली इफेक्ट, जो आपका इफेक्ट आया है वो किस पे आया है, सिर्फ और सिर्फ HTML पे, बाकी किसी पे उसका इफेक्ट आपका नहीं आया है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट जिस टैग के अंदर मैंने जितने टेक्स्ट को इंक्लूड किया है उसका इफेक्ट बस वहीं तक है, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें कोड को, अब जैसे मैं इस कंप्लीट टेक्स्ट पे लगा देती हूँ, राइट। अगर थोड़ा सा इसको मूव करें, ये वाला जो फॉन्ट पार्ट है ना, इसको यहाँ क्लोज नहीं करते, इसको यहाँ से Ctrl+X कर लिया, कट कर लिया, इसको यहाँ क्लोज कर दिया, Ctrl+V कर दिया, है ना। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट, कैसा आउटपुट आएगा। कम ऑन रेज द हैंड, कम ऑन टेल मी। Yes, come on, unmute yourself. See, oh my God, so many parts. This time I want someone new. Yes, Pooja, you answer. Pooja, you answer. Rajneesh and Shivam have answered. ये HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, पूरे पे आ जाएगा वो, सारे का फॉन्ट साइज और कलर चेंज हो जाएंगे। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे का साइज 10 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने सही हैं। सो कंप्यूटर जी आप इसको रन करें। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट P10। इट्स ऑलरेडी देयर एग्जीक्यूटेड, बस रिफ्रेश कर देती हूँ। ओह फाइन। So I think there is no confusion कि कहाँ तक इसका इफेक्ट जा रहा है। आप जहां फॉन्ट टैग ओपन किए, जितने कंटेंट उसके मिड में डालोगे और जब उसको क्लोज करोगे जहां पे, तो उस पूरे कंटेंट पे आपका जो है इसका इफेक्ट आएगा। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। अब अभी तक हम सिर्फ यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया। आई हैव डिस्कस ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, दैट इज I discussed you about font size, okay, and the font color. There is one more attribute that is called face. That is called face. F-A-C-E, face, right? आपका face. तो face का मतलब होता है what is the style, कि हमारा वो टेक्स्ट कैसा अपीयर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपको दिखता है ना फॉन्ट का स्टाइल, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरियल, है ना। इसी में से हम एक दो को कॉपी करके वहां डाले हैं। जैसे यहाँ पे एरियल नैरो है, एलियर राउंडेड है। जैसे इसको जैसे ही मैं, जैसे मान लो मैं इस पे यूज कर रही हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया वी को, राइट। अब जैसे हम इसको चेंजेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं वी का तरीका चेंज हो रहा है। वी ऐसा हो जा रहा है, वी ऐसा हो जा रहा है, कभी ऐसा हो जा रहा है वी, कभी ऐसा हो जा रहा है वी। तो आप जैसा फेस डालोगे उसी तरीके का आपका फॉन्ट का क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। So same thing we will be using in our font tag also. So now let me execute another program, that is P11, okay, which will be discussing another attribute of font tag, that will be face. Okay, that will be face. Okay, जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने फॉन्ट टैग यूज किया, HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो एक पे इफेक्ट डाला, बस जो पहले का कोड था सेम चीज यहाँ डाला है। अब यहाँ पे हमने एक नया चीज डाल दिया, एक P डाल दिया, पैराग्राफ टैग डाल दिया। अब नो नीड टू एक्सप्लेन कि ये P टैग क्या करेगा, एक लाइन का गैप देगा, इट विल गिव यू 1 लाइन गैप, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड यू। तो अब मैं बीच बीच में ना पीछे का एक दो टैग को यूज कर दूंगी, ठीक है, सो दैट आप थोड़ा सा रिफ्रेश होते रहो, अदरवाइज होगा कि आगे बढ़ते गए चीजों को पीछे से भूल जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे P डाल दिया, मतलब एक पैराग्राफ टैग डाल दिया। इसका मतलब कि एक ब्लैंक लाइन का स्पेस आएगा हमारा आउटपुट में, राइट।
अब देखो दूसरा मैंने फॉन्ट टैग ओपन किया, इसको क्लोज कर दिया। देखो ये वाला पार्ट बस यहीं तक इफेक्ट डाला, इसको मैंने क्लोज कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि एक वेब पेज में एक टैग को आप एक ही बार यूज कर सकते हो। जहां पे हमें जरूरत पड़ेगा, जहां पे हमें इसका रिक्वायरमेंट होगा, हम वहां पे उस टैग का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेकंड में लिखा फॉन्ट साइज मैंने क्या डाला है 15, कलर क्या डाला है ब्लू, इससे अच्छा है कलर थोड़ा सा कर देते हैं रेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फेस मैंने लिखा है ब्रॉडवे कॉमा एरियल कॉमा टाइम्स न्यू रोमन। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे होता क्या है ना कि बहुत सारे सिस्टम में अलग अलग फॉन्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं, राइट। किसी में हो सकता है एरियल ब्लैक सपोर्ट नहीं कर रहा हो, किसी में कोई और फॉन्ट का जो मैंने नाम लिखा वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग एक एज्यूम करके उससे मिलता जुलता 3-4 फॉन्ट स्टाइल का नाम लिख देते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि ब्रॉडवे एरियल और टाइम्स न्यू रोमन कुछ हद तक सिमिलर दिखेगा। हो सकता है कि क्लाइंट के सिस्टम पे वो सपोर्ट नहीं करे ब्रॉडवे या एरियल, तो हो सकता है टाइम्स न्यू रोमन सपोर्ट कर जाए। तो उससे मिलता जुलता 3-4 ऑप्शन हम डाल देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये 3-4 ऑप्शन एक साथ वर्क करेगा? नहीं, लेफ्ट टू राइट हमारा मूव करेगा। अगर HTML पहले चेक करेगा, हमारा ब्राउजर पहले चेक करेगा ब्रॉडवे इज अवेलेबल, अगर वो फॉन्ट अवेलेबल है, वो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, तो उसका स्टाइल लेके आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। इफ ब्रॉडवे इज नॉट अवेलेबल, के बाद बात करते हैं, भैया क्लास दे रहे हैं। ओके, ब्रॉडवे, राइट। तो अगर ब्रॉडवे अवेलेबल आपका नहीं रहेगा, ठीक है, तो इट विल मूव टू एरियल, इट विल मूव टू एरियल, एरियल को दिखेगा, अगर वो है उसको डिस्प्ले कर देगा। इफ एरियल इज आल्सो नॉट अवेलेबल, देन इट विल मूव टू टाइम्स न्यू रोमन, अगर वो अवेलेबल है उसके इफेक्ट को डिस्प्ले करेगा। सपोज अ टाइम अराइजेस कि नन ऑफ द फॉन्ट इज अवेलेबल, हो सकता है, we should be clear with all the possibilities, right? Suppose all the 3 fonts are not available, so nothing to worry। सिस्टम का जो डिफॉल्ट फॉल्ट होगा, जो इसका फॉन्ट स्टाइल होगा, ऑटोमेटिक, अभी तक तो हमारा टेक्स्ट तो दिख रहा था ना, बॉडी में लिख रहे थे, तो वेब पेज पे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो उस डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल से लेके आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन ब्राउजर। जनरली बहुत सारे ब्राउजर सिस्टम पे ये अलग अलग फॉन्ट होते हैं, लेकिन जनरली टाइम्स न्यू रोमन और एरियल ब्लैक इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, लेट मी शो यू दिस, इसका इफेक्ट कैसे कैसे आता है। P11, okay, P11, so we are there with P11। अब देखो कुछ आपको इफेक्ट दिख रहा है, ये जो HTML थोड़ा खा पी के मोटा हो गया है, ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट? ये HTML थोड़ा सा हमारा हेल्दी हो गया लॉकडाउन में, राइट। और ये HTML बहुत नॉर्मल सा है, बिकॉज इसमें मैंने क्या करा दिया, फॉन्ट फेस भी लगा दिया हमने, इसमें अलग अलग स्टाइल को डाल दिया। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा दिया, फॉन्ट फेस लगा दिया। तो जो भी आपका अवेलेबल फॉन्ट फेस होगा आपके, आप बोलोगे मैम इतना सारा कैसे याद करेंगे? तो मैंने बोला ना, याद तो कुछ करना ही नहीं है। बहुत दिक्कत आएगी, वर्ड खोल लेंगे, यहाँ से 4-5 फॉन्ट को कॉपी कर लेंगे, वहां जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ से चेक भी कर लेंगे, अच्छा ये स्टाइल ऐसा है, अच्छा ये स्टाइल ऐसा है, ये स्टाइल ऐसा है, यहाँ चेक भी कर लेंगे किसी टेक्स्ट पे, और बहुत दिक्कत आएगी, यहाँ से कॉपी करके वहां पे नाम को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। So nothing to worry. So I hope that we are clear with this P11, right? तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे फॉन्ट के मैंने कितने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया? I discussed you 3 attributes. I discussed you about font size, I discussed you about font color, and I discussed you about the font face. I discussed you about font face. So these are the थिंग इज दैट हमारा कलर रेड नहीं हुआ। ओ आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, जो प्रोग्राम था हमारा उसको हमने सेव नहीं किया था। ओह सॉरी माय डियर, और नोबडी हैज टोल्ड मी ना, इट मींस माय डियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंड। आपको बोलना था ना मैम दूसरा का तो कलर रेड आना चाहिए था, बट इट मींस जो मैंने पहले करके रखा था
उस पे मैंने अभी एडिट किया ना, तो उस एडिटिंग को मैंने वापस सेव नहीं किया। इसलिए कल इससे एक चीज आपको सीखने को मिला कि जब भी यू आर मेकिंग एनी चेंजेस, इफ यू आर मेकिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस, first it must has to be saved, then only it will be reflected to the web page, otherwise the web page will have the same content. Yesterday also Arun sir was saying जैसे मिशन विजन पहले का ही अपडेट था, तो कल फिर उसको अपडेट किया होगा, गया होगा उस वेब पेज को, एंड रिफ्रेश करके आपके वेबसाइट पे वो दिख रहा है, अदरवाइज इट विल हैव द सेम कंटेंट व्हिच यू वर डूइंग अर्लियर। मैम नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है ड्यू टू हैवी रेन, आई डू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, so that is not in our hand, okay, but recording is being done, हो रहा है। बहुत दिक्कत आएगी तो आप उसको एक बार पॉज कर करके एक बार आप सुन लेना। apart from that this PDF will be shared to you, so just don't create such chaos, otherwise it will be very difficult for us to move ahead. Okay, so fine, I hope that I am clear with this P11 program also, right? थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, आपने बताया नहीं, मैंने यहाँ रेड लिखा था, मैंने उसको वापस सेव नहीं किया था, दैट्स वाई वो हमारा ब्लू ही दिख रहा था, ठीक है। चलिए, now let's move to the next that is P12. What is there in the P12? Let's see. Most probably it will be the concept of combining tags, because as far as I remember, I don't think. Okay, fine. एक का क्वेश्चन है कि फेस वाला मोबाइल में कैसे होगा, सेम वे ऐसे ही होगा, सेम वे नो यही लिखना है, कुछ नहीं करना है, सेम चीज आपको लिखना है, क्योंकि वो तो एक एडिटर है ना, मोबाइल पे आप जो मैंने आपको लिंक दिया था वो बस एक एडिटर है, उस एडिटर पे HTML का सारा प्लेटफॉर्म है, आप बस लिखोगे चीजों को जिस तरीके से यहाँ कोड लिख रहे हो, सेम चीजों को आप वहीं पे भी लिखोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चूंकि मैं लैपटॉप से तुम्हें बताई कि तुम्हें समझ में आ जाए कि किसको कहते हैं फॉन्ट फेस, यहाँ से हिंट लेने के लिए मैंने कहा तुम यहाँ से अपने दोस्त से 5-6 ऑप्शन का नाम पूछ लेना, क्योंकि किसी को याद तो नहीं रहता जनरली फॉन्ट फेस का नाम, अब किसको याद रहेगा ये क्या है, एरियल, यूनिकोड, MS, एरियल, राउंडेड, एम्प्टी, बोल्ड, आप 4-5 फॉन्ट फेस का नाम याद रख लेना, आप उसको वहाँ पे डाल देना, गूगल करके भी मिल जाएंगे फॉन्ट नेम। Exactly. Okay, so now let's move to the next program, that is P12. Now what I am telling here, जैसे देखो अब यहाँ पे हमने दो चीज किया, अभी तक हम फॉन्ट को सेपरेटली यूज कर रहे थे, अगर हम चाहे तो यहाँ पे कंबाइन, जैसे मैंने बोला था ना कि आज का हमारा एक टॉपिक है कि इफ वी वांट वी कैन कंबाइन द टैग्स आल्सो, है ना, कंबाइनिंग टैग्स, राइट। अगर जरूरत पड़ा तो हम HTML के 1-2 टैग्स को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं टू हैव मोर बेटर इफेक्ट। जैसे कहते हैं ना, अब जैसे मान लो हम लोग कुछ भी चीज डिजाइन करते तो नहीं, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग हो जाता, क्रॉप कर देते इमेज को, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफुल, हम लोग यहाँ पे HTML में भी वेब पेजेस को मोर इफेक्टिव अगर आप बनाना चाहते हो, आई मीन इफ यू वांट टू मेक इट लुक एंड फील मोर बेटर, so we have the option that we can combine 2 or 3 tags together. In the beginning of today's session there was a question from one of the students कि मैम combining tag को थोड़ा explain कीजिए, so I just request that particular student to be very focused on this topic. कुछ नहीं, don't get confused कि बहुत सारे टैग को कैसे मिलाएंगे, कुछ नहीं है, 4-5 टैग आपने पढ़ा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम, जैसे मान लो कि अभी आप इस कोड को अगर देखोगे ना, देखिए जैसे यहाँ पे तो सिंपल है, चलो बॉडी लिखा हमने, बॉडी के अंदर मैंने क्या यूज किया, हेडिंग, इसका मतलब हेडिंग अपने आप में एक टैग है, H1 एक आपका टैग है ना, इसका तो हेडिंग का साइज सबसे बड़ा होता है, एकदम होता है, ठीक है। अब उस हेडिंग के अंदर हमें फॉन्ट को चेंज करना था, स्टाइल को चेंज करना था, राइट, तो हेडिंग के अंदर वो एट्रीब्यूट नहीं था, वो एट्रीब्यूट अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है क्योंकि उसका साइज तो फिक्स रहेगा कि वो 6 जाएगा या कुछ भी, तो मुझे उसके डिजाइन को, मुझे उसके पैटर्न को चेंज करना है, तो हम हेडिंग के अंदर किसको यूज कर दिए, फॉन्ट को यूज कर दिए, और फॉन्ट के अंदर के वो वाले फीचर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर मैंने किसको यूज किया, फॉन्ट को, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द कंबाइनिंग ऑफ टैग्स मीन, राइट। H1 के अंदर किसको यूज किया, फॉन्ट को, अगर जरूरत पड़ता फॉन्ट के अंदर किसी और चीज को भी यूज करते, तो सिंस अभी हमारे पास बहुत सारे टैग्स नहीं है, अभी हम बहुत सारे टैग्स को डिस्कस नहीं किए, सो वी आर लैकिंग इन टैग्स राइट नाउ,
So the moment we will be completing with the more tags, right, हम लोग और भी अलग अलग टैग्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हेडिंग टैग हो गया, ठीक है। अब हेडिंग के अंदर हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, देखो हेडिंग के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है। हेडिंग के अंदर किसको यूज किया मैंने, फॉन्ट को। फॉन्ट में मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, कलर ब्लू डाला, फेस वही डाला, ब्रॉडवे, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, और क्या लिख दिया, HTML। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया, फिर इस H1 को भी क्लोज कर दिया। मतलब हेडिंग सिर्फ किस पे इफेक्ट डालेगा, बस इस HTML पे। एक चीज को ध्यान देना, और देखो फॉन्ट टैग ओपन किया है तो फॉन्ट को पहले क्लोज किया है और हेडिंग को बाद में क्लोज किया है, क्योंकि फॉन्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, हेडिंग पे। तो फॉन्ट पहले अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। इट मींस हमें पहले फॉन्ट टैग को क्लोज करना होगा, एंड ओनली आफ्टर दैट ओनली वी विल बी क्लोजिंग द हेडिंग टैग, बिकॉज हेडिंग के अंदर फॉन्ट को डालना है। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, वी यूज ब्रेसेस। एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथ साइड और एनी स्ट्रीम, हम लोग जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने ब्रेसेस तो यूज करते हैं ना। तो क्या रूल होता है, जब बोर्ड मास रूल आप फॉलो करते हो तो हम लोग ब्रेसेस को सॉल्व करते आते हैं, जो इनर ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, एंड सो ऑन। एम आई राइट पार्टिसिपेंट्स? मैम ऐसा करते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग मैथ्स या कोई न्यूमेरिकल भी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट डोंट थिंक कि HTML कुछ नया कर रहा है, वो वही टर्म्स वही चीजों को अपने लैंग्वेज के फॉर्मेट में बस बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग मैथ्स में पहले से ही करते आते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज बता रहा है कि नहीं भाई कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर H1 यूज किया, H1 के अंदर फॉन्ट डाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट के एक्सप्रेशन को पूरा क्लोज कर देंगे, उसके पूरी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान देना कि फॉन्ट को पहले मैंने बंद कर दिया, फॉन्ट का काम खत्म। क्योंकि ये फॉन्ट H1 के अंदर यूज हुआ था, इट वाज यूज्ड इनसाइड H1, सो दिस H1 हैज टू बी क्लोज्ड। कर दिया क्लोज। नाउ दिस पार्ट इज ओवर, राइट। बट स्टिल द टेक्स्ट, बिकॉज जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो तो बॉडी के अंदर है ना। तो इसको तो ये तो वेब पेज पे हमारा दिखेगा, तो इसको यहाँ रहने दिया और उसके बाद किसको क्लोज किया, बॉडी को, बिकॉज बॉडी हैज टू बी क्लोज एट द एंड। बॉडी को पहले ही क्लोज कर दोगे तो जो तुम्हारा कंटेंट है वो तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि बॉडी के अंदर जो चीज आप लिखते हो दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर वेब पेज, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड, व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट इज ओनली इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, राइट। उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इफेक्ट वी गेट। It was P12, okay. Is it clear? Now see, वो स्पेस दिया, बड़ा सा कर दिया, HTML को ब्लू कर दिया। ये बड़ा क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द हेडिंग टैग हैज बीन यूज्ड, और ऑटोमेटिकली हेडिंग टैग में आपका एक लाइन का गैप आता ही आता है। कल हमने देखा था हेडिंग टैग के बीच में H1 H2 ऑटोमेटिकली वो आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में करता है। और इज वेरी इंटरेस्टिंग, वाज आउटसाइड द फॉन्ट टैग, आउटसाइड द हेडिंग टैग, इसलिए इस पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ा है। एक बार फिर से आप आउटपुट को देख लो, एक बार फिर से आप अपने कोड को देख लो, दोनों को मैच करके देखो। ये सिर्फ HTML पे इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आया है। और बाकी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वाज separated from that heading, that was separated from that heading, so there is no effect. So we are clear with this combining tag। और हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। अभी तो जितने सारे, जब हम लोग प्रॉपर एक वेब पेजेस डिजाइन करने लगेंगे उसमें तो सारे कंबाइनिंग टैग्स के ही कंसेप्ट यूज होंगे, टैग्स के अंदर बहुत सारे टैग्स यूज होंगे। तो वहाँ पे आप एकदम अवेयर रहना कि हाँ कैसे चीजों को कर सकते हैं। हेडिंग टू, क्या टेक्स्ट में सेम टाइम H2 में भी यूज कर? यस यस यू कैन रजनीश, यू कैन। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट। So P12 we discussed, now come to P13. क्या पूछ रहे हैं ये आशीष? What is the question? Let me see, ma'am. Ashish Shankar. Excuse me, ma'am. If we use P tag consecutively, can we get line gap? Of course. इसका मतलब हम P के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही ना। अगर 3-4 P टैग, जैसे अभी मैंने 2-3 BR यूज किया तो उसका इफेक्ट तो दिखा। तो सेम वे अगर आप 2-3 P टैग यूज कर दोगे तो आपको 2-3
एक टेक्स्ट का गैप एक एक्स्ट्रा लाइन, एक टेक्स्ट का गैप एक एक्स्ट्रा लाइन, एक टेक्स्ट का गैप एक एक्स्ट्रा लाइन, automatically that will be displayed. Yes, you can. Okay, Ashish, you can use. Okay, so now let's move to the next, that is P13. Okay. Okay, ma'am. Okay. See, now this is अभी जो मैंने इस PPT में शेयर किया था, this one, ये चार टैब. Okay, B stands for bold. Okay, B stands for bold. जैसे हम लोग यहाँ पे bold है ना, देखिए यहाँ पे bold है, ठीक है. तो किसी भी टेक्स्ट को जैसे मान लो इस टू को मैंने सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, देखो थोड़ा ये टू मोटा हो गया. आई मतलब इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. यू मतलब अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो जाता है. सेम चीज एग्जैक्टली वी हैव विद द this HTML also, right? So we are having 4 tags for that, because HTML is what? It is also a डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ऑफ वेब पेज. वेब पेज को कैसे डॉक्यूमेंट, वेब पेज के डॉक्यूमेंट को कैसे सजाना है, कैसे सुंदर लगे वो देखने में. तो जैसे वर्ड में हमारे पास ऑप्शन है, इन द सिमिलर फैशन HTML प्रोवाइड्स अस विद सो मेनी ऑप्शंस जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो मैंने एकदम सिंपल सेंस में आपको समझाया. जैसे यहाँ पे हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज करते हैं. In the similar way, we can use the tag B, that is bold tag. I stands for italic. Okay. U stands for underline. U stands for underline. And TT stands for typewriter. TT stands for typewriter. उसका जो font होता है थोड़ा सा वो typewriter style में आपका वो font होता है. ठीक है. तो अभी मैं इस चारों को एक ही वेब पेज में मैंने यूज कर दी है. लेट मी ओपन इट. जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, ठीक है. यहाँ पे बी मतलब बोल्ड लिखा, AN कॉलेज. तो हमारा जो ये AN कॉलेज है ये कैसा आएगा? बोल्ड आएगा. जो AN कॉलेज है हमारा ये कैसा आएगा? बोल्ड आएगा. फिर मैंने ब्रेक, एक गैप ले लिया एक लाइन का. फिर मैंने लिखा है आई. दिस आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक. दिस आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक. ये जो आई है इट्स स्टैंड्स फॉर इटैलिक, राइट. तो यहाँ पे AN कॉलेज हमारा थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में आएगा, राइट. तो थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, राइट. Then this is TT, that is called typewriter style, right. फिर सब में मैंने BR लगा दिया है. BR stands for break, एक लाइन का गैप आएगा, AN college. And U, that is for underline. तो जो लास्ट वाला हमारा AN college आएगा, that will be underlined, right. So let's just see P13. It's there, you can see. Can you say it? Students, can you say it? AN कॉलेज थोड़ा बोल्ड आया, ये थोड़ा टेढ़ा आया, और ये AN कॉलेज थोड़ा सा टाइपराइटर स्टाइल में आता है. आप देखोगे लगेगा कि टाइपिंग किया हुआ, जो टाइपराइटर से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, राइट. और ये देखो अंडरलाइन हो गया. ये 4 टैग्स क्लियर. वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर ऑल्सो. बहुत सिंपल है. मैंने कहा था ना कि आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा लगे HTML क्या है, अगर थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो 2-3 दिन का हमारा और जो क्लासेस है वो हमारा बेसिक लेवल एकदम क्लियर कर देगा. उसके बाद हम लोग थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे मूव करेंगे, तो वहां पे आपको लॉजिकल होना पड़ेगा. अब वहां पे क्या होगा, हेडिंग के अंदर बॉडी के अंदर हेडिंग आ जाएगी, उसके अंदर फॉन्ट आ जाएगा, उसके अंदर बोल्ड भी आ जाएगा, फिर कहीं इटैलिक आ जाएगा, कहीं ब्रेक आ जाएगा, कहीं पैराग्राफ आ जाएगा. तो you are not supposed to get panic there, because it's all, now we will be combining all the tags together to have a complete web page, right. अभी तो हम लोग तोड़ के अलग अलग का इफेक्ट देख रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी होगा. हम लोग सबको एक साथ एक ही वेब पेज के अंदर हमारी कोडिंग क्या होगी, कंबाइन होगी. तो फॉर दैट पर्टिकुलर रेस, उस पर्टिकुलर के लिए डिजाइन कैसे वर्ड को करेंगे, डिजाइन कैसे वर्ड को करेंगे. ये तो दस राजेश जी, राजेश कुमार, आपने जो लिखा है ये द क्वेश्चन आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एक्चुअली यू वांट टू से. डिजाइन कैसे वर्ड को करेंगे, तो थोड़ा सा ये मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं. राइट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नहीं समझ में आया वर्ड को कैसे डिजाइन करेंगे, राइट. तो ये हमारा हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट मी जस्ट सी
what if anything is missing. This we completed, center font, this first slide we completed, and the combining tags we completed. Now very important, very important part, lists in HTML, right? List in HTML, ठीक है। अब आप बोलोगे ये है क्या, ठीक है, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं। जैसे कभी कभी हम बहुत सारे वेबसाइट विजिट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, जैसे आपका ही AM कॉलेज, इट इज ऑफरिंग सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज एंड सो मेनी normal courses like BA and MA and all, right? तो अगर मुझे अपने वेबसाइट पे दिखाना है वोकेशनल कोर्स, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या लिस्टिंग है, वी आर हैविंग BBA, वी आर हैविंग BCA, वी आर हैविंग MCA, वी आर हैविंग MBA, we are having BSc IT and so many other, we are having fashion designing, we are having so many other courses. So to represent such data, generally we have a list of data and उसको लोग properly represent करते हैं bullets के format में listing करने की। जैसे आप देखो ना, जैसे आप देखो यहाँ पे जो मैंने यूज किया, आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बना दिया कि थोड़ा सा ये आपको दिखे एक एरो के साथ। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने उठाया, आप देखो ये बुलेट्स है, यू कैन जस्ट सी द वर्ड, इट इज बुलेट्स। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँ ना, ठीक है, जैसे हमने क्या किया ना, इस पूरे को अगर सेलेक्ट किया, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसको स्क्वायर करना चाहती हूँ, मैं इसको ये करना चाहती हूँ, ये गोल करना चाहती हूँ, ये टिक करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं कुछ चाहिए तो नन कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो अलग अलग स्टाइल्स है ना, इससे क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छा अपीयरेंस उसका क्या हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, राइट? So for that we have different types of list in HTML. In the same way, अगर हम अपने वेब पेजेस में कुछ उस तरीके के डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं, उस तरीके से डॉक्यूमेंट को अरेंज करना चाहते हैं, तो we have the concept of list, right? So we are having 3 types of lists in HTML. One is actually ये ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं, numbering hardly matters. First one is numbered list, जिसमें नंबरिंग होगा। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे हमारा नंबरिंग नहीं है, यहाँ पे डिजाइन्स है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक नंबर्ड लिस्ट है, 1 2 3 1 2 3 ABC रोमन में है, स्मॉल में है, राइट? तो जो मैं कह रही हूँ नंबर्ड लिस्ट, वैसा लिस्ट जो कि नंबर्ड होगा, राइट? मतलब उसमें कोई नंबरिंग होगी, ABC की नंबरिंग होगी और 1 2 3 की नंबरिंग होगी और समथिंग लाइक दैट, राइट? दूसरा होता है आपका अननंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OL टैग से, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, राइट? तो नंबर्ड लिस्ट को हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं, विच हैव अ कंसेक्यूटिव ऑर्डर लाइक A1 2 3 ABC एंड ऑल, राइट? नेक्स्ट वी हैव अननंबर्ड लिस्ट, इट मींस कोई उसका नंबरिंग नहीं होगा, इट विल हैव अ सर्टेन पैटर्न, कोई पैटर्न होगा, इट कैन बी ट्रायंगुलर पैटर्न, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, राइट? वर्ड को कैसे डिजाइन करेंगे मैम, very difficult question, I'm not getting what this question mean, right? Next is definition list. जैसे हम कोई चीज को डिफाइन करते हैं ना, तो ऊपर में उसका हेडिंग डालते हैं, उसके नीचे उसके सब हेडिंग्स को डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा 2 लाइन में डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। उसको किस टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, DL टैग। So now I'm going to discuss you that how we are going to create different types of list in HTML, कैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपको इससे थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अननंबर्ड लिस्ट। सबसे पहले मैं आपका अननंबर्ड लिस्ट को डिस्कस करूंगी, देन वी विल कम टू नंबर्ड लिस्ट एंड देन वी विल कम टू डेफिनेशन लिस्ट। ओके, सो लेट्स P13. Okay, let me open. P14. Now see. जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये तो ऊपर का सेम है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दिया अननंबर्ड लिस्ट, और हम लोग उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं। आप उसको अननंबर्ड बोलो या अनऑर्डर्ड बोलो, कोई उसका ऑर्डर नहीं है, वो कुछ साइन के थ्रू डिफरेंट सिंबल्स होंगे, वो सिंबल्स क्या होंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट विल बी दोज सिंबल्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया,
यहाँ पे मैंने इस टैग को ओपन किया यूएल, ये ओपनिंग टैग है। अननंबर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यूएल टैग से। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया यूएल, ओके, ओपन हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो कोई भी जब आप लिस्ट यूज करोगे तो सबसे पहले आप ऊपर में हेडिंग टैग डाल दिए कि कैसा लिस्ट होगा, अनऑर्डर्ड है, यूएल है, राइट। यूएल के अंदर मुझे कितने ऑप्शंस डालने हैं, ये 4 ऑप्शंस मुझे डालना है, बीसीए, एमसीए, बीबीए एंड एमबीए। दीज आर द 4 ऑप्शंस। कैसे उसको हम डालेंगे, उसके लिए हमें एलआई टैग का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस एलआई, दिस एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट। एलआई का मतलब क्या हो गया, लिस्ट, राइट। तो जितने सारे आपको लिस्ट डालने हैं आप उसमें, जैसे मान लीजिए मुझे और भी, जैसे इसको पहले मैं रन करती हूँ, तो मैंने 4 लिस्ट डाला है एलआई से। इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एम्प्टी टैग है, ठीक है। बीसीए डाल दिया, एमसीए डाल दिया, बीबीए डाल दिया, एमबीए मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रजनीश जी इज आस्किंग वॉइड टैग है एलआई टैग, यस, राइट। उसके बाद हम इसको लास्ट में क्या कर दे रहे हैं, यूएल टैग को क्लोज कर दे रहे हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल टैग इज नॉट वॉइड, इसलिए इसे हमने ओपन किया, उसके अंदर ये सारे कंटेंट को डाल दिया और इस यूएल को हमने वापस, इस यूएल को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया, ओके। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस P14। कैन यू फाइंड द डिजाइन, सर्कल आया है, फील्ड सर्कल आया है ना। द सर्कल इज फील्ड सर्कल, भरा हुआ है, वो एम्प्टी नहीं है, वो भरा हुआ है, डॉट है, गोल सा है, दैट इज फील्ड। सो स्टूडेंट्स कैन यू से इट, ओके ओके, फाइन 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 फाइन, आई गॉट द आंसर, यस। सो जो भी आपने वहां पे लिखा है, इट इज अपीयरिंग लाइक दैट, जिस तरीके से आपने वहां पे लिखा है, इट इज अपीयरिंग, राइट। अब जस्ट थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। जैसे इसके जगह पे हम कुछ कुछ और मुझे ऐड कर, तो यहाँ पे मैं एल आई को ओपन करूंगी, एल आई डाला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बीटेक, एक लिख दिया मैंने। फिर मुझे और भी ऑप्शंस ऐड करने थे, मैंने यहाँ पे एल आई को डाला और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम टेक, ठीक है। इसको तो हमारे पास 2 लिस्ट और बढ़ जाएंगे। इसको वापस सेव करते हैं, इट्स ऑलरेडी ओपन ना, बस इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इज इट क्लियर, कैसा लिस्ट आपका फिर मैम, कैन वी सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑफ कोर्स अनन्या सुनीति, यू वी कैन सेलेक्ट, मैं अभी बस बता रही हूँ, उसी पे अभी मैं हम लोग आते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स पे आते हैं, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका फील्ड सर्कल आता है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, फील्ड सर्कल आता है, मतलब सर्कल आपका भरा रहेगा, राइट। इसके अलावा आपके पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसका एट्रीब्यूट है टाइप, राइट। वी हैव अ एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप एट्रीब्यूट, हमारे पास एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट है जो कि हम लोग यूएल टैग के अंदर यूज करेंगे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हमें कैसा अपीयरेंस चाहिए, राइट। तो जैसे अभी तो सिंपली हमने देखा कि कैसे लिस्ट को ओपन किया और कंटेंट को हम लोग कैसे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग सम अनदर डिजाइन रादर देन सर्कल, तो सर्कल के अलावा अगर आपको स्क्वायर चाहिए, आपके पास 3 ऑप्शंस है। इट कैन बी डिस्क, DISC, यू कैन यूज द वैल्यू एज DISC डिस्क। मैं ऑल द 3 वैल्यूज में यूज करके आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यूएल किया, यहाँ पे मैंने किया टाइप, टाइप इज द एट्रीब्यूट और वैल्यू मैंने लिखा डिस्क, DISC, राइट। तो आप इसको देखोगे कि जो आपका आउटपुट आएगा, इसको सेव कर देती हूँ, है ना। इसको रन किया, आपका आउटपुट, कि जो डिफॉल्ट आपका होता है वो डाइसी होता है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मैं कर देती हूँ, मैं बार बार कोड नहीं करूँगी। इसको यहाँ से, इस पूरे को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, अब यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, फिर नीचे जाके एक और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हेडिंग हो गया, इसको छोटा कर, थोड़ा छोटा कर दे, H2 कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए। फिर यहाँ पे एक और था ना, इसको H3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टाइप है, इसको डिस्क से हटा के
यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, इसकी वैल्यू स्क्वायर हो सकती है और इसमें हम लोग डाल देते हैं सर्कल, राइट, CIRCE, CIRCLE, राइट, सर्कल डाल देते हैं। तो अब इसको वापस सेव कर देते हैं, इसको मैं दूसरे नाम से सेव कर दूँ, P15 कर देती हूँ, ठीक है, कि वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सेव एज, इसको मैं न्यू नेम से सेव कर देती हूँ 15। P15 so let me execute this. Can you find the difference? Dear student, can you find the differences in all the three tabs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very well. Sonal Yadav raised the hand. Sonal, you want to yes, unmute yourself. Sonal, put forward your question. What you want to say? Oh, she lowered his hand. Her hand. Okay. Sonal, you want to say something? Okay. Fine. Yes, ma'am. It's clear. Okay, it's clear. Okay, fantastic. Thank Good. you. Okay, fine. So you can see, अब बोलोगे मैम और भी अलग अलग डिजाइन्स चाहिए, तो सी HTML इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग, ये कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आपको बहुत डिजाइन्स मिलेंगे। इट इज अ वेब प्रोसेसिंग टूल, राइट। अगर आपको मल्टीपल डिजाइन चाहिए तो हमारे पास फिर ऑप्शंस है, हमारे पास हम लोग वैसा डिजाइन फोटोशॉप पर डिजाइन कर ले, उसको एज अ इमेज यहाँ पे अपलोड कर दे, वैसा भी किया जा सकता है, राइट। देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारा तरीका। जिस चाहो कि नहीं मैम यहाँ पे एप्पल का साइन दिखे या कोई और साइन, तो जो हमारे टैग में अवेलेबल नहीं है, वी कैन नॉट क्रिएट वैल्यू ऑफ आवर ओन। हम लोग कोई अपनी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। जो HTML टैग के साथ वैल्यूज प्री डिफाइंड आ रहे हैं, उसी प्री डिफाइंड वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट पार्ट इज क्लियर, और कहीं ना कहीं आप इसको कोरिलेट भी कर पा रहे हो कि कहाँ पे इस टैग का यूज करें। जैसे मुझे वेबसाइट में डिस्प्ले कराना है कोर्सेज, सपोज मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वेबसाइट बना रही हूँ या फिर कोई हॉस्पिटल के लिए बना रही हूँ, तो है ना, मेडिकल फैसिलिटीज बीइंग ऑफर्ड, ये सारी चीजें होती है। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स को मुझे दिखाना है, तो मैं इस टाइप्स के लिस्ट का यूज करके प्रॉपर्ली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट आवर वेब पेज शुड लुक लिटिल बिट अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। मैम एक बार इसका पेज सोर्स दिखाइए। ओके फाइन, नो इशू, द कोड इज अवेलेबल टू यू। सी थोड़ा बड़ा हो गया है, अब बड़ा पेज को मुझे आपके PPT में डालना मुश्किल होगा, तो मैं क्या करूँगी, एक डाल दूंगी। अब जैसे डिस्क डाला है, अब अगले जगह पे क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, सर्कल डाल दिया, वैसे मैं कट करके डाल दूंगी, वैसा भी हो सकता है, वी कैन डू दैट आल्सो, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, बिकॉज we are coming to end of the day, so I think whatever I have discussed till now, it should be very much clear to you. Just give me one or two students kindly, just yes, Rajneesh. मैम क्या इस जगह पे डिस्क स्क्वायर की जगह पे नंबर भी यूज कर सकते हैं? नो, आप नंबर फिर यूज करना अगर आपको, तो यू गो विद द ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ये तो अनऑर्डर्ड है ना, इट विल कंटेन ओनली पैटर्न्स, डिफरेंट डिजाइंस इट विल कंटेन, राइट। इफ यू वांट टू, अभी जस्ट इसके बाद हम जो बताते हैं वो आपको नंबर्ड लिस्ट ही बताते हैं, जिसमें हम लोग ABCD के फॉर्मेट में ला सकते हैं, 1 2 3 के फॉर्मेट में ला सकते हैं, रोमन के फॉर्मेट में ला सकते हैं, स्मॉल ABC ला सकते हैं, कैपिटल ABC ला सकते हैं। सो मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर, बट दैट इज ओनली पॉसिबल विद द ऑर्डर्ड लिस्ट। इट इज एक्चुअली अनऑर्डर्ड, तो यहाँ पे हमारा सिंबल्स ही दिखेगा, ठीक है। ओके मैम। yes, Sanjay Kumar, yes, you want to say something, Sanjay? Ritesh Kumar Sharma, you raise your hand, you want to say something? Okay, fine. Ma'am, I want to know, like, I was asking some question on the previous chat. Ma'am, you're not. Once again, ma'am, I was thinking on the myself. यूज करते हैं functions को ऐड करने के लिए, तो उसमें जो वैल्यू है मैम, उसका कुछ जानना था मुझे। उसकी जो वैल्यू है 6 और 7 में, तो उसको स्मॉल्स का कैसे कर सकते हैं?
I didn't get what did you say? आप एक बार इसको टेक्स्ट कर देना मुझे जब ग्रुप ओपन। फॉन्ट साइज के बारे में बोल रहा है, वैल्यू मतलब उसको भी छोटा किया जा सकता है। हाँ, फॉन्ट को आप हाँ, बड़ा कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो उसको 5 कर दो, 3 कर दो, 2, बिल्कुल। आप जैसा कर सकते हो। आपके वर्ड में जितने साइज अवेलेबल है वो सारे साइज को आप अपने वेब पेजेस पे भी डाल सकते हो। वो तो एक नंबर इज जस्ट अ फिगर, उस फिगर पे आप जो वैल्यू डालोगे इट विल टेक द रिजल्ट ऑफ दैट वैल्यू। जो भी 10 डाला मैंने तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग साइज को ले लेगा, 15 डाला तो 15 के कोरस्पॉन्डिंग साइज को ले लेगा, 20 डालोगे 20, कम डालोगे तो छोटा साइज लेगा, ठीक है। So this was about a numbered list. Now let's move to the अभी हम लोग डिस्कस किया unnumbered list और unordered list. Now we will be discussing ordered list और numbered list. तो मैं थोड़ी सी लेजी हूँ इस फील्ड में, फील्ड इन द सेंस कि आई एम नॉट गोइंग टू टाइप अ न्यू प्रोग्राम, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आई एम मेकिंग इट नंबर्ड, ओके। बट आप ऐसा नहीं करना, आप पढ़ोगे पूरा। आप जब भी कोडिंग टाइप करोगे तो आप पूरा टाइप करोगे, डोंट रिलाई ऑन कॉपी पेस्ट, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आप अगर जितनी बार टाइप करोगे उतनी बार अच्छा होगा, आप उसको सीख जाओगे। यहाँ पे ओ यू के जगह पे हम क्या करेंगे, ओ यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले जहाँ जहाँ मुझे चेंजेस करना है वहाँ मैं चेंज कर लेती हूँ। इस ओ एल को भी क्लोज करेंगे। अब इस यू के जगह पे मैं ओ कर देती हूँ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, ओ एल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। So wherever it was in the previous program UL, I am making it to OL, ठीक है, so that to save my time. But you people will don't do like this. I'm not advising you to do like this. आप एक बार फिर से 2-3 बार टाइप कर लोगे so that आपको याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो अब हमें नंबर के फॉर्मेट में लेगा। अब जैसे इसको डिस्क भी हटा देते हैं, पहले कुछ नहीं डालते, बस सिंपली यूज करके देखते हैं कि कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अभी विदाउट एट्रीब्यूट्स ये पता चल जाएगा कि डिफॉल्ट इसका क्या होता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, किस टाइप के डेटा को ये लेता है, ठीक है। लेट मी सेव एज इट विद सम अनदर नेम, दैट इज P16, ठीक है। इसको सेव कर दिया। Now let's execute this P16. तो देखो ये इससे क्या पता चला कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या लेता है, ये नंबरिंग। ओके, वन स्टूडेंट इज सेइंग यस वेरी गुड कि मैम हेडिंग भी चेंज करना पड़ेगा, नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। हाँ ठीक है, उसको भी चेंज कर देंगे, तो टेक्स्ट है, ठीक है। नंबर्ड लिस्ट यहाँ से ऑन ऑर्डर हटा दीजिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड कि आपने इसको ध्यान दिया, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया, राइट। अब यहाँ से आपने ओपन किया, इसको ओपन करके मैं वो रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा नंबरिंग ले लिया, 1 2 3 4, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग क्या लेगा, 1 2 3 में। इन द सेम फैशन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो जस्ट लाइक वहां पे हमने क्या यूज किया था, टाइप। यहाँ पे भी इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप, ठीक है, टाइप। अब टाइप कैसा चाहिए, तो अगर हम लिख देंगे यहाँ पे टाइप हमें चाहिए स्मॉल ए से या कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप को लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप लिख देती हूँ स्मॉल ए, तो किससे शुरू, सॉरी कैपिटल ए से शुरू हो जाएगा। अगर इसमें टाइप लिख देते हैं स्मॉल ए, तो ये वाला हमारा स्मॉल ए से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला था ना, एक और होगा ना, हाँ यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टाइप। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ न्यूमेरिक रोमन वाला, ठीक है। अब इसको वापस इसको सेव एज कर देते हैं 17 में से, राइट, .html। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जहाँ जहाँ जैसा ऐसा टाइप डाला है वैसा वैसा आएगा। एक बार आएगा ABCD आ गया ना, ABCDF आ गया, एक में शायद न्यूमेरिक डाल दिया है या फिर चेंज नहीं किया, और एक में ये रोमन में आ गया, ठीक है, फाइन। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। एक हमारा बच गया, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट, ओके। सो वी विल बी डिस्कसिंग, फिर सारे लिस्ट को कंबाइन भी करेंगे, ठीक है।
तो most probably आज हम लोग बहुत चीज डिस्कस किए. We reached to 17 programs. Okay, so till now, yesterday we ended till 4th program. P4 था कल, याद कीजिए. Yesterday, ma'am, it was only P4. Right. We just, and it's 17 today. So I mean, so we are getting leads. So most probably tomorrow it will be 20 programs, or next day 25 programs in a day. So slowly we will be having in program 13 तक लिखा हुआ है, 14, 15, 16. 2-3 और मैं इसमें ऐड करके 1-2 मिनट में फाइनलाइज करके आई विल बी सेंडिंग इन द. बिल्कुल.